विंड्स एनर्जी का 7वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कॉन्फ्रेंस लगेगा 29 से 31 अक्टूबर 2025 चेन्नई ट्रेड सेंटर में। यह एक ऐसा शो होगा यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी से भी अलग हटकर एक एनर्जी है जो बहुत पुरानी पद्धति हो रही है। विंड्स एनर्जी ग्रोथ एंड इनोवेशन 2025 solar. What happens is solar when we started here, even now, higher percentage of things are coming from elsewhere, still not settled like wind. They are actually starting it now. Many industries are starting it now, but we have reached the maturity as far as the onshore wind is concerned. We are like now, if you look at offshore, fastest we cannot compare. We are learning offshore. As far as offshore is concerned, it will come step by step. Both the technologies are required. We are interested in offshore also. So both will come together. The fastest and the rate of fastest we cannot compare, because we need to know for India when to introduce the offshore, when to introduce onshore, very commercially and as per the industries of India, as per the India's policy, we need to work and cooperate. That's why I said in my talk, we need to work as one industry, and we are doing it in one industry as far as the wind is concerned. अगर जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार अगर हर साल 2 गीगावाट के ऑर्डर दे रही थी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, वो बढ़ के अब 4-4.5 गीगावाट हो गई। ये तो 200% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई जी। बहुत पुरानी पद्धति है हिंदुस्तान में, बहुत पुरानी है, नई नहीं है, बहुत पुरानी है। बहुत पहले पवन चक्की इसको बोला करते थे, बहुत पहले टाइम से। लेकिन अब इसकी क्या होगी, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी और सप्लाई कैपेसिटी में कितना डिफरेंस है अभी स्टोरेज कैपेसिटी और सप्लाई कैपेसिटी? He is asking, wind is a very age-old technology, and what is how it has grown in terms of storage of power and generation of power. How it has grown in the recent years in terms of storage of power and generation of power. Of course, storage is not something. As on today, generating is more than storage. But storage, right from salt storage to battery storage, technology has evolved. Today, the wind industry is comfortable in battery storage system. The companies, OEMs are setting up the factories in India to create the storage facility, like containers, 40 feet containers, stack on it, and in megawatt scales we can store. So, the government also is giving orders of installing, generating power and storing and supplying the power 24 hours. So technology is available. It is picking up. Many have not invested in solar, mainly because they are actually generating and evacuating the power. And if it is required, and if the order to us is with storage and supply to the grid at the right time on demand, we have the technology and we are capable of doing it. And in India itself, those kind of battery manufacturing facilities are available. This is एक्विजिशन, लैंड ऑफ एक्विजिशन है, तो लैंड एक्विजिशन जो इफेक्ट कर रहा है तो उस पे कैसे आप सर्वाइव कर रहे हैं? The land doesn't occupy so much. We can stack. It is like a container. One over the other, we can stack it. It doesn't take much of the land area like solar. Wind also doesn't take much land area. Solar takes much area. Same way, power also, storage also system will not occupy much. Relatively, I am comparatively talking. So you don't require to worry about the land requirements. Yes, we will be comfortable with that. And yes, तो विंड एनर्जीज में कितनी कैपेसिटी है हमारे देश में जो आगे चल के जो हमारी समस्याएं हैं बिजली की वो पूरी कर सकेगी,
और जो कॉन्फ्रेंस जो 30-31 अक्टूबर को हो रही है उसका मेन मकसद क्या है? तो IWTMA में जो हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से 50 तकरीबन 52 गीगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आज हिंदुस्तान में विंड मिल्स के लिए, विंड एनर्जी बनाने की। तो ये अगले 5 साल में ये हमें उम्मीद है जो सरकार का प्लान है और जो हम उनके साथ मिलके इंडस्ट्री इसे लागू कर रही है, ये 2030 तक 100 तक हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इसलिए जो हमारा हर साल की जो IWTMA की कॉन्फ्रेंस होती है इसमें सारे कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर, जितने कस्टमर, भारत सरकार और भारत सरकार के काफ़ी डिपार्टमेंट, पॉलिसी मेकर, ये सारे एकत्रित होते हैं। तो ये 29 से 31 तारीख को चेन्नई में होगी। हर साल ये बढ़ती जा रही है, लोगों का इंटरेस्ट इस पर बढ़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में इस लाइन में बिजनेस बढ़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट ईयर की तरह ये भी बहुत सक्सेसफुल रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया और पब्लिक की तरफ से बहुत लोग अपने आप को चेन्नई में आएंगे और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। विंड एनर्जी एक्चुअली बेसिक है क्या? लोगों को ये पता लगे कि है क्या, ये पंखे चलते हैं क्या? आपने जैसे कि पहले कहा कि पवन चक्की बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो बस पवन का जो वेग है उसको, उससे ही चक्की को चलाना है और उससे जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। भारत में हमारे पास 1164 गीगावाट का पोटेंशियल है, इसमें से अभी हमने सिर्फ 50 से 53 गीगावाट की हार्नेस किया है और जो कि करीब 5% से भी कम है। हमें बहुत आगे जा सकते हैं। तो जैसा कि सर ने कहा 100 गीगावाट हमको रीच करना है 2030 तक और 2050 तक हम 450 गीगावाट तक जाएंगे, क्योंकि AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं, उनके लिए हमें बहुत पावर प्रोड्यूस करना होगा। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है पवन चक्की वाली कि हम समुद्र के ऊपर वहाँ बना सकते हैं और वहाँ पे ही हमारा डेटा सेंटर भी हो सकता है, तो हमारा ट्रांसमिशन लॉसेस भी नहीं होंगे। तो ये एक कदम है जिसकी तरफ हमें टेक्नोलॉजिकली बढ़ना होगा और आगे आने वाले समय में गुजरात और तमिलनाडु में हम ये देख रहे हैं कि ऑफशोर के लिए भी काफ़ी ग्रोथ है। अडानी एनर्जी ने भी इसके ऊपर अलग से फोकस किया हुआ है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बजट बनाया है और उस पर काम कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या उस पर ये आप उससे मिलके या उससे कहीं कैपेसिटी करते हैं? जी बिल्कुल, वो हमारे एसोसिएशन के माननीय मेंबर हैं जी। और सारे ही OEMs जो इस इंडस्ट्री में सभी हमारे मेंबर्स हैं और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि गियर बॉक्स हम बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, तो सभी हमारे मेंबर्स हैं और हमको सबके साथ मिलके ये सपने को साकार करना है। तो पूरी इंडस्ट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं, विंड इंडस्ट्री को। थैंक यू।